प्रभु तुमे स्वयं विराजित, प्रभु तुमे निजे आविर्भूत। शत शत जीव तमसा पीड़ित, शत शत जीव तमसा पीड़ित, नुहन्ति के भयभीत। प्रभु तुमे स्वयं विराजित, प्रभु तुमे निजे आविर्भूत। पहिली उषार दिगंत उज्ज्वले, कमल रुण रागे, असीम आशार पुलकित मने, नव संभावना जागे। पहिली उषार दिगंत उज्ज्वले, कमल रुण रागे, असीम आशार पुलकित मने, नव संभावना जागे। आसीब से दिन तिमिर ज्ञान, आसीब से दिन तिमिर ज्ञान, हेब चिर पराहत। प्रभु तुमे स्वयं विराजित, प्रभु तुमे निजे आविर्भूत। हे अंतरतम शाश्वत विस्मय, जेबे आस भावना रे, उछुले उठई हृदय सरसी, चिर कृतज्ञता नीरे। हे अंतरतम शाश्वत विस्मय, जेबे आस भावना रे, उछुले उठई हृदय सरसी, चिर कृतज्ञता नीरे। तब पाद पद्मे जणाऊ नीरवे, तब पाद पद्मे जणाऊ नीरवे, शत शत प्रणिपात। प्रभु तुमे स्वयं विराजित, प्रभु तुमे निजे आविर्भूत। शत शत जीव तमसा पीड़ित, शत शत जीव तमसा पीड़ित, नुहन्ति के भयभीत। प्रभु तुमे स्वयं विराजित, प्रभु तुमे निजे आविर्भूत। प्रभु तुमे स्वयं विराजित, प्रभु तुमे निजे आविर्भूत। करुणामयी मां परम प्रभु श्री रविन्द्र पूजास्पद भाई एवं आज दिव्य मुहूर्त ओडिशार विभिन्न शिक्षा केन्द्र आसिथिबा मोर समस्त भाई बहन को अंतर श्रद्धा और सम्मान निवेदन करुछि।
କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କର ଉପକ୍ରମଣିକାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୋଟିଏ ସମ୍ୟକ୍ ବିବରଣୀ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗୀ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖାଯାଇଛି, ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତବର୍ଷର ମହାନତା, ଭାରତବର୍ଷର ଚିନ୍ତା ଚେତନା, ଭାରତବର୍ଷର ଭବିଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଏତେ ଯେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ତା କଳନା କରିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଭାରତର ଶିକ୍ଷାର ଇତିହାସ ଏ ଦେଶର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସରୁ କେବଳ କଳନା କରାଯାଇପାରେ। ଦୀର୍ଘ 5000 ବର୍ଷର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବହୁ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ନିଜତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଏହାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ସନାତନ ପରମ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଶାଶ୍ୱତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯାହା ଥିଲା, ଅଛି ଏବଂ ରହିଥିବ। ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାଟି ଯାହା ଦେବଭୂମି ଭାରତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏ ଦେବଭୂମି ଭାରତର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଟି ହେଉଛି ଏକ ସତ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କୃତିରୁ ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ତାର ଆବିର୍ଭାବ ସେଇଠୁ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ଏହି ଦେଶର ସଂସ୍କୃତିରୁ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଅବଲୋକନ କରିଥାଉ, ତା ପୃଷ୍ଠା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ସେ କୃତଜ୍ଞତା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କେବଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଦେଶର ଅଗ୍ରଗତିକୁ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି? ରୂପାୟିତ କରେ। ତେଣୁ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତିରେ ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକାଟା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସିଲେ, ସେଇଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ବା ସଂସ୍କୃତିକୁ 5ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ବୈଦିକ ଯୁଗ। ବୈଦିକ ଯୁଗ ଭିତରେ 3ଟି ଜିନିଷ ରହିଲେ ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ପୁରାଣ। ତାପରେ ଆସିଲା ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗ। ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗ ପରେ ତୃତୀୟରେ ଆସିଗଲା ମୁସଲମାନ ବା ରାଜତ୍ୱର ଯୁଗ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆସିଲା ବିଦେଶୀ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଯୁଗ। ତାପରେ ଯେଉଁଟା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଭାରତର ପୁନର୍ଅଭ୍ୟୁଦୟର ଯୁଗ। ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ପୁନର୍ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଯୁଗରେ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସବାସ କରୁଛୁ। ବୈଦିକ ଯୁଗର ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସବୁ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଭାରତର ୱାର୍ଲଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବେ, ଗ୍ରୀକ୍ ଇତିହାସକୁ, ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେଥିରେ କିଛି କିଛି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା। ପରେ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲା, ଶିକ୍ଷାକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷର ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବା ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଯଦି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି, ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ହେଉଛି ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଜୀବନ ଧାରଣର
ज्ञान एते जोरे नथिला कारण जो शिक्षा पद्धति जो थिला जे सेमान चाहूले ए समग्र जगतटी गोटे आर ऊर्ध्व स्तर में आउ गोटे जगत अच्छी गोटे ब्रह्म जगत अच्छी तेणु या पर जीवन धारण पर आउ कौन घटव से कथा से ज्ञान भी से नाला जदिव ऋषिमुनि माने तार अनेक आभास देते गोटे उदाहरण देवी हिरण्मयन पात्र सत्य सापि हितम मुखम गोटे शब्द से कहते अर्थात सूक्ष्म दृष्टि से देखिपारे एपरी गोटे भविष्य आसो हिरण्मय जुग आसी गोटे अमरत्वर जुग आसूसी से जुगरे एमती गोटे अच्छी कौटी सूक्ष्म जगत को से चली जाते आत्मोपलब्धि कला बेले आत्मार विकास कला से जगत को जाते से शब्द गुड़िक बुद्धि को अवतरण करूला गोटा भाई कहते जे केवल श्रुति से लेखापढ़ा किसी नाला जहाँ आसूला से कहते तो से जो कहते से गोटे स्तर सबकि आस तस्मात् देवा बहुधा संप्रसुता सद्या मनुष्य पशव बयांसी प्रणीपान ब्रीही जब तपस्या श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्य विधिश्च अर्थात गोटे जगह जहाँ कि संसार घटुच गोटे जगह आसूस से धीरे 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 से निजक परिव्याप्त बढ़ाऊँ एक उपनिषद में बहु बार जगह दि जाए सिद्धांत भी करापर जितेबाला ख्रीष्टपूर्व 700 तक्षशिला प्रथम विश्वविद्यालय आरंभ है तक्षशिला विश्वविद्यालय आरंभ है से नालंदा विश्वविद्यालय पृथ्वीर श्रेष्ठ महाविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय अन्यतम था नालंदा विश्वविद्यालय सप्तम जो शताब्दी बेलू से 10,000 शिक्षार्थी पाठ पढ़ुते 2,000 शिक्षक थे एवं नालंदा विश्वविद्यालय अनेक विषय शिक्षा लाभ करा से कौन अच्छी विज्ञान ज्योतिर्विज्ञान भेषज तर्कशास्त्र और तर्कशास्त्र को दर्शन सांख्य योगशास्त्र वेद बौद्ध शास्त्र एवं विदेशी शास्त्र व राष्ट्रीय सीमा को अतिक्रम करी अनेक देशरू छात्र मान आसुले चीन इंडोनेशिया कोरिया जापान रशिया यही भाव में अनेक देशरू छात्र छात्री मान आसी एठारे गुरुकुल नालंदा विश्वविद्यालय रही एवं तुर्की एवं से पार्सीर शब्द नाला तुर्कीर जो छात्र छात्री मैंने से आसिक पाठ पढ़ुते कौ आचार्य मान थे से समय जो आचार्य मान आम उपनिषद पढ़ू बा जो विभिन्न संगीता सब अच्छी संगीत आम अवलोकन कला बेले देखा जाऊ से मध्य प्रथम थे वेदव्यास वैदिक जुग थे वेदव्यास चरक सुश्रुत आर्यभट्ट भास्कराचार्य पतंजलि वात्सायन ऋषि कणाद पैल वैशंपायन जैमिनी सुमंत कपिल गौतम याज्ञवल्क और केतक विद्वान सब कौ शास्त्र सब लिखिं ना गणित शास्त्र ज्योतिष शास्त्र पदार्थ विज्ञान भेषज विज्ञान शैल्य विज्ञान ललित कला यांत्रिक और उत्पादन प्रजुक्ति विज्ञान सिविल इंजीनियरिंग जोटा आम कहे वास्तुकला जहाज निर्माण नौ परिवहन क्रीड़ा क्षेत्र में पृथ्वीर ज्ञान व्यवस्था को बहुमूल्य अवदान वैदिक समाज वैदिक शिक्षा पद्धति से जहाँकि आज आम आणविक जुगे रोचु आटम न्यूक्लियर ये सब जिन आम जो एवं उद्भावन करुचु ठीक 2500 ख्रीष्टपूर्व बेले ऋषि कणाद जहाँ कहुए काश्यप कहुए काश्यप अन्य नाम दी जाए से गोटे स्कूल करते कहुए द फादर ऑफ एटॉमिक थियोरी थियोरी ऑफ एटम्स वाज एक्चुअली फॉर्मुलेटेड 2005 years बिफोर डाल्टन डाल्टन कर 2500 ख्रीष्टपूर्व 2500 बीसी बिफोर क्राइस्ट भितर से करथिले कौन करथिले ना इंडियन सेज एंड फिलोसोफर नोन एज आचार्य कणद हु लिव्ड इन 6th BC जो षष्ठ ख्रीष्टपूर्व षष्ठ रे से माने 600 रे थिले तांको स्कूल ना देखला द स्कूल ऑफ एटम गोटे विद्यालय करथिले आणविक शिक्षा केंद्र करथिले आजिर जो माने अणुशास्त्र विज्ञानी मान जो अच्छा जहाँ करते 6 पदार्थ को 6टा भाग में विभक्त करते भारत वर्ष केते महान करता भाई बहन मान जोटा ब्रज भाई कहते
ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଅବକ୍ଷୟ କରିଛନ୍ତି ବିଦେଶ ଶାସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ମହାନତାକୁ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ଆମକୁ ତଳସ୍ତରକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଋଷି କଣାଦ କହିଛନ୍ତି କଣାଦ ସିଷ୍ଟମ ସ୍ପିକ୍ସ 6 ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍। ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲେଖା ହେଇଛି ପଦାର୍ଥ, ତାକୁ ଇଂରାଜୀ କରାଯାଇଛି ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ କରି ପଦାର୍ଥ। 6ଟା ପଦାର୍ଥ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଥିଲା ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଲେ ଟର୍ମନ୍ ଅର୍ଥ ମୋସନ ଗତି। ତୃତୀୟ କହିଲେ ବିଶେଷ ପାର୍ଟିକୁଲାର। ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ ଚତୁର୍ଥରେ କହିଲେ ଗୁଣ କ୍ୱାଲିଟି। ପଞ୍ଚମରେ କହିଲେ ସାମାନ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ। ଷଷ୍ଠରେ କହିଲେ ସମାଭ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନହେରେନ୍ସ। ଏଇ ଗୁଣକୁ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ଯେଉଁ ତକ୍ଷଶିଳା ନାଳନ୍ଦରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ସମ୍ମାନ ଯେ ଭାରତର ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ସେମିତି ତାଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା। କାରଣ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେରିକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଜନ୍ ଡ୍ୟୁକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଭାରତୀୟ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ପୃଥିବୀର କେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଏକ ନୂତନ ଆଲୋକ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା, ଯାହା ବହୁ ସହସ୍ରାବ୍ଦୀ ପରେ ଆଜିର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଭାବନ କରିବାର କହୁଛନ୍ତି। ତା ଭାରତବର୍ଷ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲା। ସେଥିରେ ଥିଲା ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀ ଘୁରେ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ। କୋଉଥିରେ କହିଥିଲେ ନା ଯଜୁର୍ବେଦରେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯଜୁର୍ବେଦର 3 ମଣ୍ଡଳ 6 ସୂକ୍ତରେ କୁହାଯାଇଛି ଆୟଂ ବହୁ କୃଷ୍ଣର କର୍ମ ସଦନ୍ ମାତରଂ ପୁରଃ ପିତରଂ ଚ ପ୍ରୟନ୍ତ ସୋହ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏହି ସତ୍ୟକୁ କୋପର୍ନିକସ ବହୁ ସହସ୍ରାବ୍ଦୀ ପରେ ଭାଇମାନେ ଅପମାନେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସେତେବେଳେ ସମାଜ ଏତେ ତଳ ଥିଲା ଯେ କୋପର୍ନିକସଙ୍କ କଥାକୁ ସେମାନେ କେବେ କ'ଣ କଲେନି, ଗ୍ରହଣ କଲେନି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କଲେ, ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାର ବହୁ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯଜୁର୍ବେଦ ଆମର କଥା କହିସାରିଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀ ବୁଲୁଛି। ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କୋଉଠି ଥିଲା। ଏବଂ ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ କୁହାଯାଇଛି ତୃତୀୟ ମଣ୍ଡଳ ଚତୁର୍ଥ ଷଷ୍ଠ କୁହାଯାଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅସ୍ତ ହେବା ପରେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁଣି କୁଆଡ଼ୁ ଆସି ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ନାହିଁ କି ଅସ୍ତ ନାହିଁ, ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବାକୁ ହେଇଥାଏ। ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ କୁହାଯାଇଛି ସ ଅବା ଏସନ କଦାନ ଚ ଅସ୍ତମିତି ନ ଉଦେତିତମ୍। ସେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏକଥା ଐତରେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିସାରିଛି, ଆମର ଉପନିଷଦ କହିସାରିଛି, ବହୁ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି। ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଗୋଲ ବୋଲି ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏକଥା ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ସପ୍ତମ ମଣ୍ଡଳ 1:1-3-32 ସୂକ୍ତରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପରିମଣ୍ଡଳ ବା ଅୟଂ ପୃଥିବୀ ଲୋକାହା। କଥା ଏ ପୃଥିବୀଟା ଗୋଲ। ମ୍ୟାଗ୍ଲେନ୍ ଆସିବା ପରେ କହିଲେ ପୃଥିବୀଟା ହେଉଛି ଗୋଲ, ତାକୁ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇଛି ଖସି ପଡ଼ିବା। ମ୍ୟାଗ୍ଲେନ୍ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜାହାଜ ଚାରିପଟେ ବୁଲି ଆସିଲେ କହିଲେ ପୃଥିବୀଟା ଗୋଲ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଉପନିଷଦ ଯୁଗରେ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ଅୟଂ ପରିମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ ବା ଅୟଂ ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀ ଲୋକାହା। ଏଇ ପୃଥିବୀ ଲୋକଟା ପୃଥିବୀଟା ଗୋଟେ ଗୋଲାକାର, ସେତିକି କହିନାହାନ୍ତି ଭାଇ ବାପା। ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଜୈମିନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ କୁହାଯାଇଛି। ଜୈମିନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି 1 ମଣ୍ଡଳ 257 ସୂକ୍ତରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେବଳ ପୃଥିବୀ ନୁହେଁ, ତା ଛଡ଼ା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହମାନ ମଧ୍ୟ ଗୋଲାକାର। ସେ କହିଛନ୍ତି ପରିମଣ୍ଡଳ ଆଦିତ୍ୟ ପରିମଣ୍ଡଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପରିମଣ୍ଡଳ ଓହୋ ପରିମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତରିକ୍ଷମ ପରିମଣ୍ଡଳ ଇୟଂ ପୃଥିବୀ। ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷର ଜ୍ଞାନର ସୀମା କୋଉ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଥିଲା। ବିଜ୍ଞାନ କେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ, ଗବେଷଣା କୋଉଠି ଥିଲା, କୋଉଥିରେ ଥିଲା? ତାଙ୍କର ଥିଲା ନା ଗବେଷଣାଗାର, ତାଙ୍କର ତ ନଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଲାବୋରେଟୋରୀ। ସେମାନେ ତ କୋଉ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ବସିନଥିଲେ, କୋଉ ଜ୍ଞାନରେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନର ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଥିଲା ଯେ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିର ସୀମା ଏତେ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥିଲା ଯେ ଯାହା ଅଶ୍ରୁତକୁ ଶୁଣି ହୁଏ, ଯାହା ଅଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ହୁଏ, ଯାହା ଅବ୍ୟକ୍ତକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ହୁଏ। ଭାଇ ବାପା ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଖିର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। କାନ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, ତାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରୁତି ବୋଲି ଅଛି। ଯେ ଶ୍ରୁତିଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ଜାଣିବା, ଅଶ୍ରୁତକୁ ଶୁଣିପାରିବା, ଅଦୃଷ୍ଟକୁ ଦେଖିପାରିବା, ସେଇ ସ୍ତରକୁ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଯାଇପାରୁଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଆସିଥିଲେ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଶିକ୍ଷାର ପଦ୍ଧତିଟି କେମିତି ଥିଲା। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ
कौन करथिले ना एही जुगर शिक्षार धर्मर अंश विशेष थिला आदर्श आचरण स्वभाव समष्टि को आइडियल कौन जो लिविंग एवं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग अर्थात आम सरल जीवन जन्म करवा उच्चतर ज्ञान गोटे अव्यवस्था थिला जे शिक्षक बा छात्र मान भितर गोटे मिशिबार गोटे बंधन थिला ताकला शिक्षा केन्द्रिक बा शिक्षक केन्द्रिक शिक्षा थिला शिक्षक मानकर बा आचार्य मानकर कठोर अनुशासन रे छात्र मान रहते तेणु छात्र मान शिक्षक मान आगक मिशिबा पई छात्र आसुनथिले ता परवर्ती समय रे आसीची उपनिषद रे आसीची किंतु वैदिक युगर आरंभ जो थिले उपनिषद युगर जो आचार्य मान थिले छात्र शिक्षक भितर दूरत्व टिके रहउथिला छात्र मान संगे शिक्षक मान संगे बा आचार्य मान सहित शिक्षक छात्र बहु दूरत्व लाभ करुला आपण मानथिबे बहु कठोर अनुशासन भितर से रहउथिले एपरि क्वाजी आचार्य मानकर जो गुरु मानकर वैदिक गुरु मानकर तांकर निर्देश रे अनेक छात्र जीवन जीवन व्यापी से गुरुकुल रही जेपर्यंत से आदेश देना गुरुकुल से जापर आप उपमन्यु कथा जानी अरुणी कथा जानी जा कले जा तुम्हें जब तुम परीक्षा करा तुम्हें किसी खाइब ना से किसी खाइले नहीं एमती 3 दिन 2 दिन गला पर संपूर्ण खाइबा मन करदे शेष से कौन कले अरख पत्र खाई दृष्टि शक्ति कौन कले से हरई बस आरुणी की कहगला तुम्हें जा बिल पानी पकेब जदि जेपर्यंत तुम्हें बंद करना आसब ना जिते से मुहाण पकेले पानी मान आश्रम जो जमी रे जिते से पकेले से पानी चली जाए फसई देउଥାଏ निजे सोई पड़े पानी चलेगा चेताशून्य हो गले यही कठोर अनुशासन भितर रहते आत्मज्ञान बहु उठुकी जाऊला किंतु जो शैक्षिक भावना था से भावना थी जोटा कि परवर्ती अवस्था ताकू अनेक जो परवर्ती आचार्य मैंने आसते जे ओम सहनावतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वी नवधीतमस्तु माँ विद्वेषावहे अर्थात गुरु कूल को जितेबाला शिक्षक छात्र जाऊला शिक्षक गुरु गोटे जगह बसिक हाथ जोड़ी प्रार्थना करते हे परम चेतना ओम सहना भवतु आपण आम दुई जन कृपा करंतु सहनम भुनक्तु आम भितर प्रवेश करंतु सह वीर्यं करवावहे अर्थात मो शिक्षक हिसाब मत वीर्य प्रदान कर शक्ति प्रदान करंतु मो आगे जो शिष्य ताकू शक्ति प्रदान करतु सह वीर्यं करवा तेजस्वी नवनीतमस्तु मते तेजयुक्त करंतु ज्ञान आलोक आलोकित करंतु यदि शिक्षकटी आचार्यटी आलोक आलोकित न हो अंधकार किंतु बाट छाड़ केमती देखेब तेणु माँ कहते द टीचर इज ए बर्निंग एग्जांपल बिफोर द स्टूडेंट्स गोटे शिक्षकटे छात्र आगे गोटे ज्वलंत उदाहरण हम निजे जलिले अन्य को बाट देखे गोटे पोड़कुंडा के कुहली कुहली पड़ जाऊ सरी जाऊ किंतु अन्य को बाट देखे पारे मशाल पड़ से जलुव अन्य को बाट देखे तेणु से कहले निजक से सब तेजस्वी नवदित माँ विद्वेष भाई अर्थात शिक्षक छात्र विद्वेष मनोभाव न उभय गोटे बंधुतुल्य एक संपर्क गोटे निबिड़तम हो तेणु से प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग अर्थात आम सरल जीवन यापन करवा उच्च चिंता करवा तो यही चिंताधारा शिष्य को सब परीक्षा करुले शिष्य से खोजुते मोर उपयुक्त गुरु किए आपण मैंने जानते गुण चिन्हे गुणिया सुना चिन्हे बढ़िया तेणु जदि जहाँ भितर जी आस्पिरेसन आस्पृहार अग्नि जिते प्रज्वलित हो से खोज तार मन को बुझला बेले आत्मा को शांत देला बेले आउ गोटे गुरु कौटी अच्छा से जो खोजी चले जिते विश्वामित्र निकट को पाठपढ़ा शेष कर चारि भाई जाक पलि आसी दशरथ पचारे जे तुम्हें मैंने सब शिक्षा लाभ कर आसिले ना हाँ पिता आम सब शिक्षा लाभ करके श्रीरामचंद्र को पचारे श्रीरामचंद्र कहले जे सब शिक्षा कर कौ शिक्षा ना सब से वेद वेदांत सांख्य तत्वशास्त्र शस्त्र विद्या धनुर्विद्या सब आम शिक्षा लाभ कर गोटे प्रश्न पचारि कहीपर ना कौन ना प्रश्नटी हूँ तुम्हें किए कष्ट से कहीदे मुझे जे सूर्यवंशर सत्यसंध राजा दशरथंकर ज्येष्ठ नंदन श्रीरामचंद्र से कहे बाबा तुम्हें कौन हल तुम परीक्षा तो फेल हो सब शिक्षा तुम नष्ट होगा गुरु तुमको ये शिक्षा देना ना सब सब सकल शिक्षार जे मूल शिक्षा जेपर्यंत तुम प्राप्त होना आउ सब शिक्षा जगत तार कौन मूल्य ना जमी एक पाखे जिते शून शून देते मूल्य बढ़े यदि एक टी चली जाए सेमती
सब चलीगला जो आध्यात्मिक शिक्षा थी तुमको किए से तुम्हें किए से जेपर्यंत तुम्हें चिन्ह न तुम सब शिक्षा चलीगला कौटे शिक्षा लाभ कर बाबा जहाँ तुम कूलगुरु वशिष्ठ पाखु जा संध्या सूर्यास्त होती इमान जा पहुँची जाइए वशिष्ठ कुटीर में कराघात कले ठक ठक कले वशिष्ठ किए किए डाकुच सी उत्तर दे आसला बाहर पटू हे गुरुदेव मु किए से कथा जानापी आपन को आसी तार उत्तर दे अर्थात से कहुई मार्क अच्छे ट्रूली टू बी ए गुड वाइफ इज ऑलमोस्ट एज ए ट्रू डिसाइपल गोटे यथार्थ जड़े पत्नी यथा जड़े शिष्य मेरा बड़ दुर्व्यपार से अहोभाग्य कहले एपरी शिष्य किए अच्छी निजक जानापी आसी मु किए जाना तो आसी खोलीदे एक स्वयं भगवान निजे आसी से आमको शिक्षा देवा लगे अर्थात पाखु चलीगले जितेबाला से विद्यालय को गोटे कृत्रिम आजिकल जो पाठपढ़ा में कृत्रिम पशुचु बापा मैंने आप विश्वास करेंगे आम जहाँ कर पिला उद्भट भर अवास्तव जिन कहूँ सब आम शिक्षा केन्द्र में कही तुम अवास्तव से राइम्स गुड़ा पढ़ानी कहीं तुम सकाल कब 20 twinkle little star how I wonder what you are up above the world so high like a diamond in the sky पिला मैंने गोटे छात्रा को देखी कहीं डेउठे ना से संध्या आकाश अच्छी ना तारा बिंदी बिंदी अच्छी कहीं तुम मैंने मिछ कथा पिला दिन शिखे शिखे आस कहीं तुम इंग्लीश मीडियम पाठ पढ़ो बोली जो गर्वान्वित मनकर पिला ध्वंस मुख चली दौच से कथा नहीं जो दुनिया से बंचुची से भाया तुम गीत लेख तार भर से बंचू अर्थात असल शक्ति को से कौन कर आहरण कर चलो ठीक एक्जाक्ट से भाव था वैदिक कूलगुरु गोटे जांत्रिक नाला कला सृजनात्मक कार्य जंत्र साहाय्य से होना कौन होता हूँ तो व्यक्तिर आत्मा जरिया कला सृजनात्मक सब जंत्र या केवे भी करें आपण मैंने समस्त आम ये बस वी आर लिटिल डिफरेंस टू इच अदर आम समस्त समस्त निश्चित अलग अलग वी हैव वॉइसेस आम मानकर वॉइस अच्छी बट वी आर लिटिल डिफरेंस टू इच अदर वी हैव वॉकिंग आम चलुचे वी आर डिफरेंट टू इच अदर मोर मोर कहवा शक्ति गोटे कार कहवा शक्ति अलग आम समस्त समस्त स्वतंत्र होकर आसचे से स्वतंत्रतार जीवन भितर जो शिक्षा नहीं से शिक्षार मूल्यहीन आज पर्यंत से शिक्षा को जाबुड़ी धरी माने समग्र पृथ्वी जाबुड़ी धरी पर्यंत से शिक्षा भितर केवे बाहरी पड़ा जोटा कहले आम श्रीअरविंद स्कूल बैनर नहीं बसबा ना श्रीअरविंद भितर कार्य करवा अत्यंत सुंदर वाक्यटी से कहते उपक्रमणिका अर्थात आम कौन कहवाक चाहूँ बर्तमान टाइम हाज कम आमको करने पड़ो आ चिंतन समय नहीं बहुत चिंता कर 55 वर्ष आसलुनि बर्तमान कर समय तेणु से कहले कौन कराला वैदिक ना शिक्षार 4टा धार था श्रवण बा शुणा मनन और निधिध्यासन श्रवण कौन करते शिष्य जो बसुला शिक्षा जाऊला आग्रह विश्वास सहित से गुरुंर कथा शुणुला आग्रह कौटी आसे जो शिष्यर मन लगी हम आपड़ बस मो कथा आप आग्रह न लगे ये उठिक चली कौन एटा कौच बसिक जब आपण मन छुईला बेला कथा न हो कहीं आप बसबे तेणु शिक्षक एभली प्रस्तुत होकर आसुले आपण समस्त हाथ टेक तो माँ आगे क्लास गला केत जन आप प्रस्तुत होकर जाऊँच छोट पिला तो आम बहुत पाठ पढ़ु जहाँ बात कहीदेव जाइए कौन जानते आम तो कहीदेव जा पढ़ेदेव आम भितर 5 वर्ष है मुझे पाठ पढ़ी जाए गाईदेवी कौन अच्छे आपड़ जानते प्रतिदिन सकाल सामान नुहे आज सकाल जो सुने काली सकाल तो बदली जाइए 6टा बेलर संजय भाई आना बर्तमान 7:40 संजय भाई मोर चिंता चेतना सब बदली जाऊँगी आम चेतनार एक स्रोत नवजन्म घटुची प्रति मुहूर्त नवजन्म घटुची प्रति मुहूर्त मोर चिंता चेतना बहुत बदली जाऊँगी ओडिया गोटे प्रभाव अच्छी बेंग कहे बेंगुलीर पृथ्वी क्षणे क्षणे के आनंद प्रति मुहूर्त में बदली बदली जाऊँगी से कथा सी करते कहते प्रथम आग्रह विश्वास शुणुला द्वितीय थे मनन मन अर्थ पुंखानुपुंख भाव में विश्लेषण करुला कौटी ना एक अंतर चेतनार सहित मन रखा आ मुखस्थ करवा एक कथा नुहे मुखस्थ करवा तो पंडित मैंने मुखस्थ करती घोषिकी कहीदेवा मु पढ़ी आस घोषिक कहली थे मालव्य आमर मदन मोहन मालव्य गोटे सभार सभापतित्व करुता जड़े प्रवीण वक्ता आसी था इतने सुंदर भाव में मंत्रमुग्ध भाव में जनता हजार हजार जनता वक्तव्य शुणिले जो वक्तव्य समापन है उच्चस्वर करताली संबर्धित कले किंतु देखिले जे सभापति कर मदन चुप गंभीर हो बसिले आप मन गोटे प्रश्न जाता है जो पचारे कहले सार आपण मोर जो वक्तव्य केमती लगे से तुम्हें कौन कहूल कि तुम तो किसी कहून ना मुझे 1.5 घंटा कहली एत लोक शुणुले मुझे किए कहूला ना तुम्हें किसी कहून तुम्हें कहूल वेद या कहला गीता या कहला ये कौन घोषिक आसिक कोटेसन दे गल्प दे तुम जीवन में तुमर मौलिक ज्ञान जहाँ कहते प्रयोग कर तुम कथा कहीं तुम जीवन कथा कहीं
माँ सुरबिंद को बहु कोटेसन करूँ कि मो जीवन में किसी प्राक्ट कर जो दिन सीटा करी मो पिला ठिया से दिन मो शिक्षक पदवाच्य हेली नचेत केवल ही ऊपर भाषुची ए ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस इज ओशन ऑफ थ्योरीज गुड रिजोल्यूशंस एंड एडवाइसेस समुद्र भली आम कौन आमर जो एडवाइस आमर रिजोल्यूशन आमर सब जगह वक्तव्य ठारू गोटे बिंदु मात्र पानी गोटे बिंदु पानी भली गोटे बिंदु प्राक्ट अनेक गुण से प्राक्ट कर समय आसीगला कहबार समय चलीगला शुणवार चलीगला ये जो मीटिंग फिटिंग भविष्य हेनी कहीं बोधयंतम पर गोटे आत्मा आत्मार कथा आरंभ हो जाऊँगी ना निरवतार कथा आरंभ हम आ पाठचंद्र ये भाषण जन दब आप कहीं शुणे बसिक कहीं समय आप नष्ट करने मु किए जो श्रीरबिंद पूरा मना कर कहते जो भारत सिस्टमटा यहाँ गोटे आम सिस्टम गोटे बैड सिस्टम श्रीरबिंद कहते नेशनल एजुकेशन कहते भारत छात्र मानकर ज्ञान बहु उच्चरे किंतु आम सिस्टमटा कौन कर कदर्य कर कौन करते बोर लगुचे शिक्षक पाठ पढ़ला बेले खातार बोर करते कणा करते पेन बस आम पढ़ला बेले डर लगे आम चित्र तैयारी करना आम पिला करते आम पाठ पढ़ा भल लगुनि लगुनि आम ता मन छुई पारूँ माँ कहले जे या वेस्ट टाइमटा कम हो समस्त को सहज हो पाठ पढ़ाटा किंतु कहार किसी लाभ मुझे गड़गड़े गोटे गुरु गारु गारु हेले से गुरु हो पारे ना गारु गारु गुटे कही पकड़ गेरुआ वस्त्र पिंधि जड़े गुरु हो पारे ना किसी गाड़ी पकड़े लेखि पकड़े से गुरु हो पारे गुरु गोटे गरिमा दरकार गोटे हेवी अंतर्चेतना भर को चल चल जाऊँ मुखस्थ अर्थ नुहे द्रोणाचार्य थे गोटे क्लास पढ़ाऊे कहले पिले 105 जन बस आज 3टी कथा कहबी कौन ना प्रथम सत्य कह क्रोध प्रकाश करना एवं धर्म पालन कर एक कहले कहला बेलू कौन है से समस्या कहले किए मन रखिए समस्त हाथ टेक युधिष्ठिर हाथ टेकिले नहीं युधिष्ठिर पचारे तुम्हें मेधावी छात्र सब भल तुम मन रखिपारे नहीं प्रथम 2टी वाक्य मन रखी 4टी मन रखिपारे ना कौटा ना धर्म पालन कर मन जो 3टी कले मन रखी बेत्राघात कर पिटी पकड़े चुपचाप ठिया कौन प्रतिक्रिया बिना प्रतिक्रिया ठिया युधिष्ठिर युधिष्ठिर कहीं ना युद्धर स्थिर जो किसी विपत्ति पड़े स्थिरता स्थित प्रज्ञ बोले कहुए हठात देखिए एत मार दौर युधिष्ठिर किसी प्रतिक्रिया नहीं पचारे दृढ़ केते बेत्राघात करुच्ची तुम किसी प्रतिक्रिया नहीं कहले गुरुदेव आपण कही ना सत्य कह जहाँ मुझे सत्य कही भर क्रोध प्रकाश कर परीक्षा करुँगी आप मतलब बाड़ेला बेले मो भर क्रोध जात हो कि नहीं आपण कृपारू आपण आशीर्वाद चाहिए किंतु धर्म पालन करेंगे अर्थ मानव धर्म जो मानवीय धर्मटी अच्छी से तो पालन करना युधिष्ठिर थे धर्मर मानवीय धर्मर परम प्रतीक तुम्हें धर्मराज बोली कहला दिने श्रीकृष्ण को जन सभासद पचारे कहले महाराज युधिष्ठिर कहीं धर्मराज बोली कहुए कहले गोटे घटना तो मुझे कहूँ युद्ध महाभारत युद्ध चली थाए राति आम देखिलु सन्ध्या बेले युधिष्ठिर भाई कुआड़े आसवे बेश राजवेश परित्याग कर साधारण बेश कुआड़े चली जाती राति 2टा 3टा को आस कुआड़े जाऊँ दिन मुझे लुचि लुचि गला बेले देखिली महाभारत जो कुरुक्षेत्र में पड़ता जो आहत सैन्य मैंने प्रतिपक्षर कौरव मान सैन्य मैंने जो आर्त चित्कार कर सेवा कर राति 3टा को आस दिन कथा पचारि भाई जदि आप साहाय्य कर आप बेश बदल कहीं जाऊँच से तुम्हें जान श्रीकृष्ण मु गले कले हे नंदनंदन जदि मो बेसर देवी शत्रुपक्षर मो थी से मो सेवा ग्रहण करेंगे नहीं साधारण बेस सेवा करेंगे से धर्मराज अर्थात आम भितर प्रति मुहूर्त निजक गोटे परिव्याप्त हृदय बंचा गोटे संकीर्ण बाहरी बाहरी आसवा से कथा था तापर से निधिध्यासन कौन ना जो शास्त्र को पर्थ मन आग्रह विषय को शुणुले सेल्फ रिफ्लेक्शन करते सेल्फ आत्म जो प्रतिफलन करते निज भितर खिंटिना स्कैनिंग करते तापर कौन करते निधिध्यासन अर्थ विश्व वस्तु पर प्रति मुहूर्त ध्यानस्थ से ध्यानस्थ होवार जो कारण हूँ आध्यात्मिक शिक्षा आत्मविद्या बोली कहुए जनकर आत्म उन्मीलन घटले साइकिक कौन ओपनिंग नहले गोटे जगार से एकाग्र होकर रही पार ना यही कथाटा से होता से गोटे विषय वस्तु पर केबे से ध्यान दे कहा कहते विद्वान बोली कहुए पंडित और विद्वान भितर 2टा फरक अच्छे पंडित मैंने घोषिकी गड़गड़ कर गाई
किंतु विद्वान होचंदी शास्त्रर निहित सत्य को उपलब्धि करी निज जीवन रे कर्म रे आचरण रे प्रयोग करी अन्य को बुझावा को जे सक्षम होय ताको विद्वान बोली कहा जाय। प्रथमे शास्त्र भीतर निहित सत्य केवल सूक्ष्म दृष्टि सूक्ष्म चिंतन सूक्ष्म सत्य को सूक्ष्म मन को धरि पारे सूक्ष्म प्राण की धरि पारे सेही स्तर को हमको जवाब पड़े निज इतिहास रे करथिला। तापरे तांकर शिक्षा रे केवल 4टी विभाग थिला 3 प्रकार शिक्षा केंद्र थिला वैदिक युग रे को थिला ना शिक्षक गृह एवं आलोचना चक्र और परिषद वा सम्मेलन 3टा जगह शिक्षा जाउथिला। आउ तांकर कोन कोतला 3टा विद्यालय थिला तांकर शाखा प्रथम विद्यालय छी शाखा अर्थ जो विद्यालय विद्यालयटा शाखा तापर थिला चरण चरण तो कॉलेज महाविद्यालय तापर थिला परिषद विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय परिषद बोली कहथिला। तापरे उपनिषद जो आसला जते बेले शिक्षा गुरु माने दउथिले तापर कोन करथिले जे छात्रर शेष वर्ष जो वर्ष तार सरी जीव तार समग्र पाठ्यक्रम जो क्युमुलेटिव चार्ट करूछे समग्र जीवन पाठ्यक्रम को शिक्षक को लिपिबद्ध कर रखुଥିଲେ तार जीवन चर्चा तार स्वाध्याय तार प्रतिदिन कार्यक्रम को ताको अनुरेख कर ताको श्लोक दउथिले। उपनिषद उपसर्ग निधातु सत् प्रत्यय उपनिषद अर्थात सिटिंग डाउन नियर आस पाखरे बस एक निवृत्त गोपनीय कोठरी रे बसी से तांकर गोटे श्लोक रे ताको दउथिले बाबारे तो समग्र शिक्षार ए होची गोटे श्लोक ताको देखतु करछि ईशावास्यम मिदम सर्वम जत किंचित जगत्यं जगत तेर चक्र भंजिता माद्युद्ध तस्य सिद्धनाम ईशोपनिषद चतुर्वेदर 400 श्लोक शास्त्र सिद्धा श्लोक स्वयं उपनिषद सेटा हे जाइछि तो सेही संस्कृत आस्थिले उपनिषद र कार्य आसला सेही उपनिषद रे समान रहउथिले एवं तापरे कोन हला एई शिक्षा चली गेला पर आसला तापरे बौद्ध युग आसला बौद्ध युग रे कोन हला भारतर शिक्षा व्यवस्था आरंभ हला। बुद्धंक समय प्रथमे शिक्षा केन्द्र में केतक शिक्षक और छात्र एकाठी शिक्षा लाभ करते बौद्ध विहार सब गठन करागला। बुद्धदेव वेद को मानु नथिले नु वेदर केतक अंश को से ग्रहण करते अर्थात से कहते जे ये संसार परिवर्तनशील बुद्धंक प्रथम था संसारटा परिवर्तनशील एवं से निर्वाण को विश्वास करते जदि जड़े निर्वाण प्राप्ति हो ये जो दुख जरा व्याधि संसार से आउ जन्म ग्रहण कर नहीं से करते तांकर जो बौद्ध विहार जो शिक्षा लाभ करागला तांकर जो बौद्ध 3टी जो त्रिपिटक थिला कहला से त्रिपिटक को पढ़ाउथिला से त्रिपिटक को पढ़ा जाय कि तांको पढ़ा जाउथिला एवं तक्षशिला नालंदा बल्लरी विक्रमशिला ये सब विश्वविद्यालय से हेतिला। ए 4टी विश्वविद्यालय थिला सेबेले तक्षशिला थिला नालंदा विश्वविद्यालय थिला बल्लरी विश्वविद्यालय और विक्रमशिला ये 4टी विश्वविद्यालय रे बहुत छात्र छात्री बने बौद्ध जतेबेले धर्मटा जतेबेले आमर राष्ट्रीय सीमा अतिक्रम करी जतेबेले बाहर को चलीगला सही समय बाहर देशर बहुत छात्र छात्री आसी जोटा कह जाए 10,000 छात्र थे 2,000 शिक्षक छात्री थे एवं ए शिक्षा गला पर अनेक कथा से भितर अच्छी बुद्धदेव समय निजे से शिक्षा लाभ करते से समय गुरुगृह रही चंद्रगुप्त विभिन्न बहु आमर गवेषणा चली गवेषणा लब्ध ज्ञान रे समग्र जगत को छात्र माने उड़ी जाई समग्र जगत समग्र पृथ्वी निजत्व को भारतर महानता को प्रतिष्ठा करते महानता प्रतिष्ठा करते से समय तापर से कौन है मोगल तापर मुसलमान समय पहुंचला राजत्व आसला आपण मैंने जानते प्रथम तो से किसी आसी करुले कि प्रतिष्ठा भाव लाभ कले जयचंद्र पृथ्वीराज समय जितेबाला शत्रु को डाकी आनी निज घर लोक मारे जितेबाला जयचंद्र कले मोहम्मद घोरी आसी प्रथम आसी भारतवर्ष रहा कौन कले तमर शिक्षा केन्द्र आरंभ होगा भारतवर्ष से आम भारतवर्ष सब महानता को ध्वंस विध्वस्त करदे से समय से चाहिए कारण जानते जो मुसलमान शासक मैंने शिक्षित नुहति ज्ञान से ज्ञानर अर्जन करने से केवल राजत्व अर्थ राजार्थ वीर अर्थ देश पर देश जयलाभ कर रक्तर नदी बुहाई एवं जी गोटे गोटे धन लुंठन कर जे निज परायत समग्र जगत रखिगला सी हूँ नराधिपति बोली कहगला से विषय नहीं शिक्षा को संपूर्ण दूर करदे अत्यंत बर्बरचित एवं अत्यंत निर्मम निष्ठुर चिंताधारा कार्यक्रम आरंभ कले भारतर सनातन धर्मर अद्वितीय सनातन आध्यात्मिक को संपूर्ण प्रहात करदे से समय से कौन कले मुल्ला मैंने कौन कला पाठपढ़ा बंद होगा सब भांगीदे सब विश्वविद्यालय भांगीदे एवं से कहले मुल्ला मैंने कौन कले पिला कोरान पढ़ेले भितर मद्रास सब तैयारी करागला से कोरान पढ़ेले एवं नवाब माने
ଗୃହ ଶିକ୍ଷକକୁ ଆଣି ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିଲେ, ହୋମ୍ ଟିଚର୍ସକୁ ଆସିକି ପଢ଼େଇଲେ। ଆଉ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ରହିଲୁ ଲୁଚି ଛପିକିରି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ଅବଧାନମାନେ ଥିଲେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଥିଲେ ଆମର ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷାକୁ ଲୁଚି ଲୁଚିକି ପଢ଼େଇଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ପତ୍ରକୁ ମାରି ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ କେତେ ଚିରନ୍ତନ ସେହି ସମୟରେ ବି ଛପି ରହିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ଭାଇ ଥିଲେ ଦାରା ଶୁକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଦାରା ଶୁକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭିତରେ କୌଣସି ଏକ ସତ୍ତା ଉନ୍ମୀଳନ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କିଛି ମୋତେ ଲାଗୁନି, ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଉ କ'ଣ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଯେତେ ସବୁ ଥିଲା ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ଭାରତର ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ସବୁ ପଢ଼ିଦେଲେ। ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, କେଉଁଥିରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଲେନି। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଦିନେ ତାକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ ଯେ ତମ ଧର୍ମରେ ଏମିତି କେଉଁଠି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଖୋଜିକି ସବୁ ପଢ଼ି ସାରିଲାଣି, ମୋ ମନ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ପାଉନି, ଆପଣ କହିପାରିବେ କି? ସେ କହିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ, ତାହେଲେ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ ନା ଆପଣ ଏଟା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ଉପନିଷଦ। ନା ଉପନିଷଦ କେଉଁଠି ଅଛି? ନା ଯାଆନ୍ତୁ ବାରାଣାସୀ ଏବଂ କାଶୀ ଯାଆନ୍ତୁ। ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ ସେଠିକି। ବାରାଣାସୀରେ ବୁଲିଲେ ସବୁ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ପଣ୍ଡିତମାନେ କେହି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି କହିଲେ? ଦୁଇଟି କାରଣ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପଣ୍ଡିତ ଅସଭ୍ୟ ଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନେ ଭୟ କଲେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଇଦେବୁ ତାହେଲେ ଏକୁ ନେଇ ଯଦି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ଦେଇଦେବ, ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ସେହି କାରଣରୁ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଟା ଥିଲେ ଗୋମାଂସ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଖାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେ, ସେମାନେ ଦେଲେନି। ତେଣୁ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ବୁଲି ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଅଘୋରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେଠି ବୁଲୁଥିଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ। ତାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଲା ବେଳେ ସେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ସେ କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଉପନିଷଦର କାହାଣୀ। ଉପନିଷଦ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିଲେ, ଏତେ ଅଭିଭୂତ ହେଲେ ତାଙ୍କର ବୁଲୁଥିବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଯେଉଁ ସତ୍ତାଟି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ 52 ଖଣ୍ଡ ଉପନିଷଦକୁ ସେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଉପନିଷଦର ମହାନତାକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜାଣୁ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଜାଣୁ ଭାରତର ମହାନତାଟା କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେଇ କଥାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତ, ଦୁଇଟା ସ୍ରୋତ ଅଛି, ଗୋଟେ ବହିଃସ୍ରୋତ, ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତ। ଭାରତର ମହାନତା, ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତ ଭିତରେ ଚାଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି। କେବେ ସେ ଅବଦମିତ ହେଇନି କି ଧ୍ୱଂସ ହେଇନି, ବିଲୁପ୍ତ ହେଇନି। ସେ ଧୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଯାଇପାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଛକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନଙ୍କର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟଟେ ମନେ ପଡ଼େ, ଆଇ ମାର୍ଚ ଫରୱାର୍ଡ ଇଟ୍ ମେ ବି ସ୍ଲୋ ନଟ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି, ହୁଏତ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦନ୍ତୁରିତ ପଥରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଛକୁ ଯାଉଛି, କେବେ ବି ଯିବିନି। ଆମର ଗତି ହୁଏତ ଉଠାଣି ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଟିକେ ଧୀର ସ୍ତରରେ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ବି ବ୍ୟାକ୍ ନୁହେଁ। ଆମର ଧାରା, ଆମ ଜୀବନର ସ୍ରୋତ ଅବିଚଳ ଭାବରେ ଏକ ଅମୃତମୟ ଆଲୋକ ଦେଶକୁ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରଭାବ, କୁହାଯାଏ ଏଟର୍ନାଲ ଜର୍ଣ୍ଣି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେମାନେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଭାଇ ଚାଲିଛୁ। ଏଇଟା ଦେଲା ଯେତେବେଳେ ମୋଗଲମାନଙ୍କର ଥିଲା, ଆଉ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଲା, ଅବନତ ହୋଇଗଲା, ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦୁରାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଭାରତବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇପଡ଼ିଲା, ମୁସଲମାନ ଶାସକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଗଲୁ, ସେଇ ଏକ ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ବିପଦ ଆସିଲା। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। 1600 ମସିହାରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆସିଲା ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସମୟରେ। ଆସିକିରି କ'ଣ କଲା ଯେ ଯେଉଁଟା 1835 ମସିହା କଥା ଉଠାଉଥିଲେ ବ୍ରଜଭୂମି, ତେଣୁ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ କରାୟତକୁ ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ଥମାସ ମାର୍କ୍ଲେ ବୋଲି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ପଠାଇଲା, ଯାହା ଭାରତବର୍ଷକୁ ବୁଲି ଆସିବ ଯେ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା କେମିତି, ତାଙ୍କୁ ଆମ ଭିତରୁ କେମିତି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ବୁଲିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଚିଠିଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ। ମୁଁ କହିଲେ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିଗଲି, ସେ 4ଟି ଜିନିଷ ସେଠି ପାଇଲେନି। କ'ଣ ପାଇଲେନି? ଗୋଟେ ଭିକାରୀକି ଦେଖିଲେନି ସେଠି। ଭାରତବର୍ଷକୁ ଭିକାରୀ ନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସୁଫଳା ଭାରତ ଆମରି, ହସେଇ ଚୌଦିଗ ସୋହାଗ ଶ୍ରୀ, ବିଲ ପର୍ବତ ନଦ ଦଦିଶକ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ମହାନ। ଆମେ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସୁଫଳା ଭାରତ ଆମର, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଭାରତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୂ ଭାରତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜଣେ ଭିକାରୀ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ, କହିଲେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଦେଖିଲେନି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କାହାକୁ ଦେଖିଲେନି? ଗୋଟିଏ ଚୋରକୁ ଦେଖିଲେନି। ଚର୍ଯ୍ୟ ବୃତ୍ତି ନାହିଁ କେହି, କାରଣ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଘର ସବୁ ଖୋଲା ପଡ଼ିଛି, ରାତିରେ ସବୁ ତାଙ୍କ କବାଟ କେତେ ଜାଗାରେ କବାଟ ଲାଗିନି। ଚୋର ନୁହନ୍ତି, ତାର ତ ଧନ ଅଭାବ ନାହିଁ, ଚୋରି କରିବ କାହିଁକି?
कर तापर देखिले जे चोर्य तापर देखिले जने मु देखिली नहीं जने मूर्ख अशिक्षित का देखनी जेकोसी उपर चढ़ी पाठ पढ़ी आपण मैंने देखते गाँ गहली पढ़ते किंतु भंज साहित्य किशोर चंद्रानंद जबू कवि सूर्य समस्त मुख्यमंत्री मुख्य गोष्ठी ए टीप मड़े कि गाई देते समस्त मन रखी जे आम पुराणा अजय पाखु केते आम शुणी जाऊ महान मान शब्द को से व्याख्या कर दिखती जन मूर्ख को देखिले नहीं परिशेष देखिले जन भिकारी भिक मागुआ लोक देखिले भिक मागुच क्या देखिए कहले एभली देश को तुम केमती गोटे कथा करि ए देशर तार संस्कृति को तार शासन व्यवस्था को तार शिक्षा पद्धति को जो इंग्लीश करदेव ताले ये किसी पढ़ी पारे ध्वंस कर ए कथा को करने लगिगला पूरा 1854 मसीहा पर्यंत लगिगला तापर से जड़े पढ़ेले सर चार्ल्स उडार बोले जड़े आउ जन को पठेले जा पूरा इंग्राजी शिक्षा व्यवस्था पूरा बदल दिया कौन कर ना भारत शिक्षा व्यवस्था हम जो सरकार को साहाय्य करवा किरानी सृष्टि कर यही कर अर्थात आम पाठ पढ़ू जो सर्टिफिकेट नाबू गवर्नमेंट पाखे बंधा थी आम ब्रेन को देखिए साहाय्य कर सरकार को शिक्षार लक्ष्य है जे एक औषधर एक अमृतमय जीवन नुहे सरकार शिक्षा जीविका आ जीवन पर सठिक जीवन से कौन कले 1854 मसीह सर चार्ल्स उडर एक नूतन शिक्षा योजना अनुसार प्राथमिक ठारू कॉलेज पर्यंत शिक्षा व्यवस्था निगला से कौन कले 1857 मसीह कलिकता बम्बे मद्रास 3टी विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा कले इंग्रेज मान शासन काल में जो शिक्षा व्यवस्था है तार उद्देश्य थिला केवल केते गुड़े चाकरिया सृष्टि करवा जो मैंने शासन कार्य सरकार को साहाय्य करेंगे तेणु डिग्री डिप्लोमा उपर गुरुत्व आरोप करागला शिक्षार असल उद्देश्य से नष्ट कर दिया आज पर्यटन से डिग्री और डिप्लोमा को धरके आम केते आमको से स्वाधीनतार 50-87 वर्ष पर भी आम से जो शिक्षा व्यवस्था इतने आमको आनंद देती मॉडर्न एजुकेशन नाम आम धर भारतर महानता को आम भूली जाइए एपर्यंत भितर मात्र सरकार देखु नहीं शिक्षा जो विशिष्ट विश्वविद्यालय अच्छी भारत वर्ष से शिक्षावितर भर चिंता भावुनि आम पूरा पढ़ा मॉडर्न हम शिक्षा व्यवस्था दूर को नबू से भर घाटू सब बेले से कथा भाई भौणी मैंने विश्वास करेंगे जिते 36 वर्ष हो गला शिरबिंद पूर्णांग शिक्षा जिते राति बसिक माँ आगे मो दीपटा टिकेबार लुज हो पड़े मो जो पिलाटू प्रथम पढ़े पढ़े आसली नो स्कूल आनंद सुखे पढ़ला बेले नवम 10 तक मुझे कौन करुच्ची घाटुची पकई से संजय भाई कहते पाठ पढ़ राति 11टा जाए बस A1 पाइब से टीचर मैंने कहते माँ कौ दिन सब बदली किए बदल भाई आपण मैंने कहते उत्तर दिंतु श्री अरविंदर ये महान शिक्षा किए बदल आपड़ कहतु बसतु कहीं कहतु किए बदल बड़ बाटर कहतु कहीपरि किए बदल बड़ बाटर कहना आम आ समग्र संसार श्री अरविंद को कहीं बुझी ना ए फी शाल सी ह्वाट डन गेट अंडरस्टैंड अल्प लोक भितर आम अच्छे आम प्रभु को बुझीचे सरकार आमको न दिंतु किसी न जो कहले आपण बंदन महापात्र सही नाटा नहीं होची जने कहले जे आम प्राइवेट स्कूल बंद करदेबू जब न करूँ कहले आप बंद कर दिंतु किसी असुविधा नहीं शिक्षा को बंद करदे शिक्षा पोड़ीजी आलोक केवल पोड़ियानी पोड़ी जाए कौन सब पोड़ीजी आम मैंने निश्चित भाव में उत्थान पतन करूँ डरबुनि आम नूतन सत्य जो आज आनी से आंदोलन को ओह्लैंट ना जितेबाला पराधीन जगत में भारतवर्ष है जो मैंने प्रथम चिंता कर निज जीवन को सुख सत्य बड़ी देती श्रीअरविंद आप 3टी पगल पढ़ना जितेबाला मो मार छाती पर जन बस पूजन न कर बसिकी विलास बसन बंची केमती बंची ठीक से भाव में आम जगत में नूतन सत्य नूतन रेस जो आसूसी आम निज जीवन को निजर व्यक्तिगत स्वार्थ को आमको बड़ी देवा पड़ो निश्चित बड़ी देवा पड़ो से भावना देखिए आपण मैंने समझ हिरो वारियर्स बोली माँ कहते वीर जड़े आम मैंने आसी सब से कार्य करने आम आसी ये आम कम टी आरंभ करने पड़ो से कौन करागला जो मारे पुनर्अभ्युदय काल आसीगला विशिष्ट भारतीय शिक्षा गोटे संस्कार लगी पड़े से किए थे राजा राममोहन राय से देखिले
भारतवर्ष इंग्राजी शिक्षा आसिक पहुँचे तेणु जदि गोटे शिक्षा को जदि आम शिक्षा सहित आम इंग्राजी शिक्षा देवा असुविधा कौन अच्छी तेणु इंग्राजी भाषा पर से विलाप कले एवं ब्राह्म धर्म से गोटे करी से विषय से इंग्राजी भाषा को रखे स्वामी दयानंद जो विशिष्ट संत थे डीएवी अर्थात दयानंद आंग्ल वैदिक अर्थात इंग्लीश और वेद मिसेक करा जो डीएवी स्कूल सब तार गोटे विकृत रूप हो अर्थात इंग्लीश अच्छी आद पर चल डीएवी आंग्ल वैदिक मिथिला अर्थात वेद और इंग्लीश अर्थात समग्र विश्वजन वेदर महानता से करते स्वामी विवेकानंद शिक्षा पद्धति संस्कार आने बहुत लगी रवीन्द्रनाथ ठाकुर शांति निकेतन कर गांधी बेसिक एजुकेशन अच्छी किंतु सेगुड़ कहीं रहा ना ना मूल सत्य ठार सब दूर अर्थात शिक्षार लक्ष्य कौन निजको कहस्त निजको जाना निज अंतर्सत्ता को जाना जोटा माँ प्रभु कहते आम अंतर्सत्ता को निजको जाना निजको चिन्हवा जोटा टिके आपण मान आगे ये पढ़ीदेवी कारण ये पढ़ीदे ही जना पड़ जे सकल प्रकार शिक्षा ही पूर्णांग शिक्षार एक दिग पूर्णांग शिक्षा एक नवीकरण प्रक्रिया नवीकरण जहाँ है ताकू गोटे रिपेयरिंग नुआकरी कराब पूर्णांग नवीकरण नुआकरी कराब कौन हम आमर आचार व्यवहार चालीचलन भाव आवेग भाषाभूषा भोजन शयन दर्शन श्रवण अनुभव विचार आदि नवीकरण को आम पूर्णांग शिक्षा बोली कहवा यह हूँ चेतनार नवीकरण शिशु एक वर्तुष्ण आत्मा बोली एक नवीकरण प्रयोजन रही स्वभाव और स्वधर्म को तेजमय और जीवंत कर आवश्यकता अच्छे अतः आम शिक्षाटी कौन हम ना स्वभाव स्वधर्मर शिक्षा मो स्वधर्म मुझे शिक्षा लाभ करी आपण स्वधर्म आप शिक्षा लाभ करेंगे जहाँ होती आसते शिक्षाटी बर्तमान शिक्षा माइंड शुड बी कनसंट्रेटेड विथ इट ओन निज स्वधर्म से बढ़ी उठ मु कहीं आपण भली हेबी जड़े पचारे जे कालाम आग जन्म कालाम तो गोटे थर कालाम दुईटा कालाम कहीं हेबे आम तो पाठ पढ़ी मधुबाबू संगे लड़ी कालिया पड़ा मधुबाबू कहीं मुझे जन्म हो मधुबाबू संगे लड़ी मारपिट कर भाई मुझे हेबी ना आपण भली हेबे ना आप जो शक्ति मातृगर जो चिंता चेतन जो शक्ति जो प्रतिभा नहीं आसे बढ़ी ताकू से शक्ति को प्रत्येक शिशु अक्षय अनंत शक्तिर भंडार से शक्ति को बाहर करके करवा हूँ गोटे पूर्णांग शिक्षा और पिता माता कार्य बर्तमान समय आम से बात कर नूतन जगत आसी नुआकरी गढ़ी उठब से कहले कौन करा पड़ो ना व्यक्ति दुख जंत्रणा भय शोक रोग वार्धक्य क्षय मृत्यु आदिर शिकार हो दैत जीवन बंचार समस्त कुमंत्रण मुक्ति पाइबार कौशल उपाय है पूर्णांग शिक्षार अच्छी आउटी ना जो पराधीन भाव में बंचीचु से पराधीन जीवन को एक देवमय जीवन देवोपम जीवन ग्रहण कर ब्रिटिश इंग्लीश जो आसिले किसी करदे अभ्युदय आसला भारत सरकार 1947 मसीह कौन है भारत स्वाधीनता लाभ कला जातीय शिक्षा पद्धति कार्यक्रम आरंभ है एनईपी 1968 से भारत प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी समय करागला कौन करागला ना फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन से समस्ते मुक्त एवं बाध्यतामूलक शिक्षा लाभ कर कहीं जन मूर्ख रही से आरंभ है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन अप टू 14 वर्ष पर्यंत फ्री एवं कंपलसरी एजुकेशन से पाइब टीचर डेवलपमेंट शिक्षा का आम देखू बहुत दिन तृतीय श्रेणी पाठ पढ़ते से टीचर होते हाईस्कल मैट्रिक खोले तो टीचर होते ना सेमती मैंने शिक्षक होगा तार गोटे शैक्षिक गुण थोड़ा दरकार से भितर ट्रेंड होगा दरकार टीचर डेवलपमेंट से करागला द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला फॉर सेकेंडरी एजुकेशन सेकेंडरी 3टा लैंग्वेज दिगला गोटे प्रथम कौटा देला ना कहगला जे एजुकेशन एंड साइंस एजुकेशन से कौन करागला ना फास्ट इंग्लिश एवं राष्ट्र जो निज राज्य भाषा और तापर हिंदी ये 3 करागला आम जो ओडिया महाराज ओडिया तापर इंग्लिश तापर हिंदी ये 3 करागला प्रथम कहले कौन फास्ट नेशनल पॉलिसी द पॉलिसी
is first is a kind of India aiming to create unified system and some of common culture. तापरे कोठारी कमिशन 62 ରୁ 66 ଭିତରେ कोठारी कमिशन जेतेबेले मां को पाखु जाइथिले सेमान जाइथिले कोठारी कमिशन रे मां तांको भेटिथिले आ पंडिचेरी रे श्रीअरविंदो किभली भाव शिक्षा से देखी जाइथिले से कहले जे कोठारी कमिशन इट वाज बेस्ड ऑन द recommendations of the Kothari Commission 1964-66 which provided a comprehensive report on the Indian education system. Education system कहले तापरे पुणे आसी गला फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन तापरे थ्री लैंग्वेज फार्मूला कले ए की component was the introduction of the three language formula of secondary education which included learning English, the official language of state, and Hindi. एतिन का करागला तापर आसला टीचर्स डेवलपमेंट टीचर्स मान पई ट्रेनिंग प्रोग्राम करागला सेट आरंभ होला जो सिटी बीडी ए सब जिंस करागला तापर नेशनल इंटीग्रेशन केमती नेशनल इंटीग्रेशन बड समग्र शिक्षा को समग्र चिंतन समस्तकर मतामत मिलवा पई गोटे एकत्व भाव पई करागला या परे 1986 मसिया एनईपी आसीगला 1986 थिले तेतबेले थिले राजीव गांधी थिले प्रधानमंत्री थिले तांको समय कौन करागला जे जे इक्वालिटी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फ्रॉम वुमेन नारी शिक्षा पर बहुत गुरुत्व दिगला नारी शिक्षा दिया करागला तबला फोकस ऑन इक्वालिटी पर समस्त पढ़ी पार एकाठी बस समस्त पढ़ी पार इक्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन धंदामूलक शिक्षा तब आडल्ट लिटरेरी प्रौढ़ शिक्षा जो बड़ मान शिक्षा केमी जो मैंने शिखी ना शिक्षित कर कला इन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी जो स्वयं शासित से आरंभ है केते गुड़िया भल भल शिक्षा केन्द्र विश्वविद्यालय को ऑटोनॉमी दिगला से बस गवेषणा करते ऑटोनोमस से करागला जातीय शिक्षा नीति 1992 मसीह पीवी नरसिंह राव जितेबाला थे प्रधानमंत्री थे से समय 1986 शिक्षा पद्धति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसी परिवर्तन कर अल्प किसी कर 2016 जितेबाला आसला 2000 गोटे प्रस्ताव दिला राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी 2000 जातीय शिक्षा नीति 2016 निमंत्रण प्रस्ताव जातीय शिक्षा नीति 2016 एक महनीय शिक्षा व्यवस्थार स्वप्न देखे जहाँ समस्त सम्मिलित गुणात्मक शिक्षा और जीवनव्यापी शिक्षण सुजोग सृष्टि करे से मानव संबल विकास मंत्रालय यहाँ से देला कौन कले से लिखिले जे शेष श्रीअरविंदो कोटेशन देख से बंद कर देखिए 2016 जो शिक्षा नीतिर लास्ट पैराग्राफ कहले जे आसंता केते वर्ष मध्य समय नहीं तो अनेक कथा कहवाई मुझे लास्टा पढ़ी कही आपको ये श्रीअरविंदो से टच कले बड़ी बड़ी से श्रीअरविंदो पहुँचला कहले आसंता केते वर्ष मध्य जातीय शिक्षा नीति 2016 भारतर शिक्षा व्यवस्थार विकास पर एक छांच प्रदान करिवो यह अतीतर सबु शिक्षा नीति संबंधित असंपूर्ण लक्ष्य उद्देश्य को आलोकपात करने सहित सांप्रतिक एवं हेउथिबा जातीय प्रगति एवं शिक्षा केन्द्र सम्मिलित समस्या उपरे एक ध्यान दिए जातीय प्रगति रे गुणात्मक शिक्षार गुरुत्व को स्वीकार करी एनईपी 2016 शिक्षार गुणात्मक मानवर प्रगति और सुजोगर उपलब्धिता उपरे गुरुत्व प्रदान करे श्री अरविंदो शब्द रे भारतीय मानक सुदृढ़ विश्वास रहा उचित जे भारत जागिब और महान हेब और जहाँ कि घटे सबु कठिनता समस्या से निश्चय साहाय्य देव से उद्देश्य को साकार करने को साहाय्य कर अंधकार समाप्त हेब एवं दिग्बल सूर्योदय हेब भारतर भाग्य सूर्य उदय हेब और सारा भारत को आलोक पूर्ण कर एशिया एपरिक सारा विश्व को आलोकित कर एतिक बंद करके गोटे छोटिया लाइन में शेष कर अवशिष्ट एकविंश शताब्दी हेब भारतर एक से शेष कर 2020 एनईपी आसी से चिंता कहे ना आपण मान समस्त बर्तमान चली कार्यक्रम चली आम पूर्णांग शिक्षा आसिक यहाँ हो गला भारत पलि आसले संक्षिप्त भाव में बर्तमान आम जो ठिया जोटा को नहीं दीर्घ 55 वर्ष आम सब घांटी होचे आम भर गोटे कौन एक अस्थिरता आमको रखे बसई दौना जेपर्यंत आम से दूर भविष्य जो अदूर भविष्य आम अपेक्षा करें कौन कर भारत वर्ष कम करने पड़ो आम चिंता चेतना भितर आसो सकल प्रकार आम जो दि पास्ट इज आवर फाउंडेशन जो आम अतीत वर्तमान भविष्य से प्रभु कौन कहते
से कहले द पास्ट इज आवर फाउंडेशन, द प्रेजेंट इज आवर मटेरियल एंड द फ्यूचर इज आवर एम एंड सबमिट। अतीत होउछि हमर भित्तिभूमि, अतीतर कौटा भित्तिभूमि जहाँ भविष्य अभिमुखी, अतीत हम स्प्रिंग बोर्ड हवा, अतीतर स्प्रिंग बोर्ड हम भविष्य मध्याह्न को लंब प्रदान करवा। से श्री अरविंद वैदिक जुगर मनोविज्ञान साइकोलोजी को आनी मनोविज्ञान उपर प्रतिष्ठित होती जहाँकि भविष्य रूपे जहाँ सब कहते आर्य ऋषि मैंने से नहीं श्री अरविंद स्टार्ट करते जे आमर अतीत हम भित्तिभूमि वर्तमान हूँ आमर कर्तव्य उपादान कौन करुचे जो कर्तव्य कथा जो कहगला कम आम कौन कर्तव्य उपादान एवं भविष्य हूँ आमर लक्ष्य और शिखर आम से भविष्य लक्ष्य शिखर को जीवा। Each human being is a self-developing soul, and that is the business of both parents and teachers is the enable and to help the child to educate himself. प्रत्येक मनुष्य होचे एक स्वयं विकासशील आत्मा, तेणु उभय पितामाता और शिक्षक प्रत्येक शिशु जेपरी निजको निजे शिक्षा करि परिबो सेथिलागि ता भितरे आवश्यक सामर्थ्य आनी देबे और सहाय्य करिबे। भाई आपा सेत पई श्री अरविंद कहले आम माने जो वर्तमान आसिक जो समय पहुंचती सेठी आमे गोटे विराट शक्ति सामर्थ्य नहीं आम ठिया भाई आपा वर्तमान 55 वर्ष आम शिखिले भितर यापर आम जगत भितर प्रवेश कर सोसाइटी भितर प्रवेश करवा कौन करुचे ताको आम कर्म आचरण आम पिला माध्यम आम शिक्षा माध्यम ए जगत परिवर्तन जो आसूँ से भितर सामिल होगा निश्चित भाव में सामिल होगा से आमको दुईट प्रकार प्रगति रही प्रभु कहते गोटे प्रगति हूँ आमर सामर्थ्य संभावना प्रतिभा आदिर विकास आउ गोटे हूँ अंतरर गभीर प्रदेश सत्य शाश्वत प्रतिभा को जाना और जागृत करवा से शाश्वत प्रतिभा को जागृत कर बाह्य प्रतिभा सहित जो मिसईदेवा से आमर प्रगति त्वरान्वित हो श्री अरविंद भाषा कहले द इवोकेशन ऑफ द रियल मैन विदिन इज द राइट ऑब्जेक्ट एंड ऑफ एजुकेशन अर्थात अंतर मध्य से प्रकृत मनुष्यर आविष्कार होची शिक्षार यथार्थ लक्ष्य जेपर्यंत आमर निजर ठिकाना पाइने परिचय पाइने आम शिक्षा अमीमांसित असंपूर्ण होती जगह को जेपर्यंत आम पहुँची ना आमर विश्राम नहीं आमर कार्य नहीं भाई अपा आमको से आम प्रस्तुत होगा पड़ो आमर जो सम्मिलन हो ये गोटे गोटे चैलेंज आम गोटे चैलेंज आमको माँ यज्ञ कर आमको डाकी आनी नहीं आमको विचार करने पड़ो आपण मान 3 दिन रही 4 दिन रे यहाँ गोटे गोटे टिप्स मात्र कौन कर गवेषणागार प्रत्येक पूर्णांग शिक्षा गवेषणागार गोटे शिविर आम गोटे सैन्य शिविर गोटे गवेषणा आम सब से प्रस्तुत कर भविष्य आपण मान माँ आम भर आमको साहाय्य करुँच आम हाथ धरी नौ शक्ति समर्थ जगे दौरान ये विश्वास भरसा कि बाटे चलवा माँ जय हम आम यात्रा निश्चित आम जा पहुँचा यही प्रार्थना जन आज मोर ये भक्ति सेवक मान निवेदन करुँच। वंदे मातरम।